everyone, a very warm welcome to all of you on the platform WellPT. Today we are here to discuss one of the very important topic what are the preparation tips for the IPMAT aspirants, those who are preparing for especially IPMAT 2027 and 2028. What are those important points to be taken care in mind जब आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे for the next year or next to next year IPMAT. So what I've done, मैंने उनको point wise लिख रखा है and I would be sharing you with you those in the point wise manner. So let's see कि what are those important tips जिनको हमें याद रखना है while preparing for IPMAT next year. So first of all is master the basics first. सबसे पहले अपने basics strong करो across all topic. Before jumping onto the higher difficulty level of any topic, master the basics of most of the topics first. एक टॉपिक में बहुत स्ट्रांग है, दूसरे टॉपिक के बेसिक्स तक नहीं क्लियर है, इट इज नॉट द फेवरेबल सिचुएशन, इट इज नॉट द आइडियल केस. सो बेसिकली सारे टॉपिक्स के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, सभी टॉपिक्स के फंडामेंटल्स बिल्ड हो बिफोर वी लाइक बिल्ड अ टॉपिक ऑफ अवर चॉइस much stronger by doing much difficulty level problems. At least the fundamentals of all topics should be clear. Second point, develop daily reading habits. This point is especially regarding to VARCs. If score improvement in the VARC, read daily and read from diverse resources like editorials, business magazines, literature, philosophy. It will build your RC problem solving as well as your understanding of comprehension, and it will build up your vocabulary as well. So this is also one of the things we should be doing it daily, that developing daily reading habits throughout the year and throughout, if you are in a 2-year preparation, then throughout the 2 years. It is also one of the things which is a must to do. Third is set time limit while practicing as well. मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम तैयारी स्टार्ट करते हैं तब हम टाइम का प्रेशर नहीं लेते. व्हाट वी डू कि हम 30 क्वेश्चन करने में, 15 क्वेश्चन करने में sometimes we used to spend entire day. It should not be the case. मतलब the moment you started preparation, in the first month of preparation, in the second month of preparation, keep a time check on yourself. Keep a time check on yourself. For example, you are doing 30 time and work problems. How much time you have taken to do it? Have you spent the 3 days in doing those 30 questions? Or you have finished them in 1.5 hour or 2 hour? I'm not saying कि बिल्कुल 30 मिनट के अंदर ही करने हैं, because you are learning parallelly as well as practicing, but still keep a time check. Okay, this is a 2-hour window where what I will do, I will attempt all these 30 questions of time and work. No matter however I am able to make, 10 क्वेश्चन बनेंगे, 15 क्वेश्चन बनेंगे, but I will try all those. Whatever I am not able to make, I will see their solutions quickly and move ahead. I've seen students involving in a single question for whole day. एक क्वेश्चन के पीछे ही पूरा पूरा दिन खराब कर देते हैं बच्चे. It should not be the case. आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, जो बन गए well and good, बाकी सॉल्यूशंस देख के समझ में आ गए, ग्रेट. जो नहीं आया, 5, 10, 15, 20 मिनट ट्राई किया, नहीं बन रहा है, ask to the faculty, see the solution. Don't waste your entire day on any particular question. So this is again a very important point कि starting of the preparation से ही try to utilize your day at the fullest. Next, take regular mocks. Learning is one part of preparation, whereas application is another part of it. So what you can do in the beginning of the preparation, take a lot of sectional and class test, topic test, and as you are after Diwali or maybe in the later part of this year, then you can start writing the full length mocks as well. Mocks are the integral part of preparation. You cannot increase your speed and accuracy or basically your application power in the question without writing the mocks. You can become theoretically wonderful, but still to score more marks, to get more marks in the examination, you need to write mocks and you need to build upon your strategy, your speed, your accuracy by doing this thing again and again. Now the fifth
point is consistent practice across topics. क्या लगता है? What has been going through my mind while writing this point? कुछ टॉपिक हमें नेचुरली बहुत आसान लगते हैं, some topics we find it naturally very difficult. So what happens? जो चीज हमें आसान लगती है हम उसकी कभी कभी प्रैक्टिस भी कम करते हैं या फिर ज्यादा करते हैं, both cases are possible. और जो चीज हमें नेचुरली टफ लगती है, sometimes we avoid it, majority of the times we avoid it and don't do even 50 odd questions from there. So थोड़ा कंसिस्टेंसी दिखाओ अक्रॉस टॉपिक्स, एटलीस्ट सारे टॉपिक्स फंडामेंटल लेवल तक बिल्ड हो जाएं, सभी टॉपिक्स के फंडामेंटल्स ठीक ठाक हो जाएं, देन वो जो लेवल अप है, वो जो अपनी प्रिपरेशन को एक नई एज देने का व्हाट डू यू से द रिक्वायरमेंट है, दैट कैन बी डन इन योर फेवरेट टॉपिक्स एज वेल. नो वन इज सेइंग कि आप हर एक टॉपिक में उतने ही स्ट्रांग हो जाओ, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. सो बेसिकली वंस द फंडामेंटल्स ऑफ ऑल टॉपिक्स आर डन, यू कैन चूज द एरियाज ऑफ योर इंटरेस्ट और उन टॉपिक पर आप और ज्यादा काम कर सकते हो. यू कैन वर्क अपॉन दोस टॉपिक्स मोर, बट नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ स्किपिंग अ टॉपिक. क्योंकि अगर आपके स्किप्ड टॉपिक से कोई LOD 1 लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 क्वेश्चन आ जाता है जो आप सिर्फ इसलिए नहीं बना पाते हैं कि यू हैव नॉट इवन गॉन थ्रू द फंडामेंटल्स ऑफ इट, दैट इज अ लॉस. दैट इज अ लॉस. तो सारे टॉपिक फंडामेंटल लेवल तक क्लियर होने चाहिए. उसके बाद इफ यू वांट टू वर्क अपॉन एनी टॉपिक मोर, इट्स वेलकम. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट व्हिच आई वांट टू शेयर. डूइंग पोस्ट मॉक एनालिसिस रेगुलरली. Don't try to save time here. Spend even a day if required to understand what when. Absolutely. मतलब बच्चे टाइम बचाते हैं, एनालिसिस करने में टाइम बचाते हैं कि उन्हें कुछ और पढ़ना होता है. नो, नॉट रिक्वायर्ड. यू शुड बी डूइंग इट डेडिकेटली. यू शुड बी गिविंग इट अ प्रॉपर टाइम. आराम से करना है, समझना है क्या क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्या वीक एरियाज हैं, कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिसपे अभी और काम करना है, किसके फंडामेंटल्स अभी फंडामेंटल्स ही रुके हुए हैं. तो यहां तो टाइम स्पेंड करना है, यहां टाइम नहीं बचाना है. मॉक एनालिसिस में, पोस्ट मॉक एनालिसिस में टाइम नहीं बचाना है, यहां पर टाइम स्पेंड करना है. whatever the time you are spending over here is worth spending. आराम से अपने टॉपिक्स पहचानो, नोट डाउन करो किसके क्वेश्चन सही हुए, 2-3 मॉक का एक साथ करो कि व्हाट इज द एक्यूरेसी इन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, व्हाट आर माय ग्रे जोन्स जहां पर एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट आ रहा है, कौन से टॉपिक्स हैं जिनको मुझे एक बार दोबारा से जाके रिविजिट करना है, अगेन ट्राई टू स्टडी देम. सो दिस इज द एरिया वेयर यू शुड बी वर्किंग अपॉन. काफी सारे बच्चे इस चीज को नहीं करते, उनको लगता है कि यहाँ का जो टाइम बचा के किसी और चीज को पढ़ लेते हैं. आपको पता ही नहीं है कि कहाँ जरूरत है पढ़ने की. ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट यू शुड बी टेकिंग केयर. स्टार्ट PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जल्दी स्टार्ट कर सकते हो आप, टू अंडरस्टैंड द वेटेज ऑफ द टॉपिक्स आस्क्ड इन डिफरेंट टाइम्स. 3 से 4 पेपर हो रहे हैं. आई एम इंदौर, आई एम रोहतक, जिपमेट, आई एम KBMS एंड वेरियस अदर्स. हर एक एग्जामिनेशन का अपना एक पैटर्न है और एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस वो पूछते हैं. तो यू शुड बी हैविंग अ गुड अंडरस्टैंडिंग. अगर आप PYQs पहले से स्टार्ट कर दोगे तो आपको पता रहेगा कि किस पे. हाउएवर इट इज नॉट 100% श्योर, बट हाँ काफी कुछ मदद हो जाती है. कहां पर लॉग के क्वेश्चंस ज्यादा हैं, कहां पर बेसिक अलजेब्रा ज्यादा है, कहां पर अर्थमेटिक ज्यादा है. यू शुड बी लाइक श्योर अबाउट कि अर्थमेटिक से भी बाइफर्केशन भी आपको पता होना चाहिए. टाइम एंड वर्क कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, because it is being asked heavily in one of the examinations. अगर कोई एक ऐसा टॉपिक निकल के आता है जो किसी भी एग्जामिनेशन में उतना नहीं पूछा जा रहा है, okay, then you can keep it least priority. But what you will find कि सभी टॉपिक कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में मेजॉरिटी में पूछे ही जाते हैं. So this way you will realize the importance of your syllabus and the importance of doing that topic at least till the fundamental level in the very beginning. So PYQs आप जल्दी स्टार्ट कर सकते हो. Master the art of picking or leaving questions. Yes, this is the main factor behind the success in the examination hall. If in the first go it is difficult to decode a question, leave it. हाँ, ये मैंने एक एग्जांपल लिया है. और इस आर्ट को मास्टर करने में it will take 10-20 mocks.
कि हाउ टू पिक अ क्वेश्चन एंड हाउ टू लीव अ क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या पूछा गया है, कहना क्या चाहते हो, तो इट इज बेटर टू लीव इट and see it later if time permits. The questions which are looking familiar to you, you have done a practice over them, you have seen these kind of questions before. This is the time you should be picking those questions, doing it, and saving your like initial marks. ऐसे क्वेश्चंस जो आपने कभी देखे नहीं, पढ़े नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट आ गए, समझ में भी नहीं आ रहा है, 30 सेकेंड्स है पास, समझ ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, it is better to take a back step rather than taking it on the ego. बैक स्टेप लेके आराम से अगर टाइम बचेगा तो देखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, इट इज नॉट एग्जामिनेशन जहां पर 100% मार्क्स लाने होते हैं। इवन 50% मार्क्स आर सफिशिएंट टू गेट ऑल द कॉल्स, है ना। 50% मार्क्स, 180 आउट ऑफ 360 सफिशिएंट टू गेट ऑल द कॉल्स। ओके, प्रैक्टिस शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिफरेंटली। ये क्यों बनाया मैंने पॉइंट, ये इसलिए बनाया है कि शॉर्ट आंसर वालों में ऑप्शन नहीं होता है, तो ऑप्शन बिना वाले भी क्वेश्चन आप ट्राई करें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एक हैबिट बन गई है वेयर वी आर डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस, और व्हेन द क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन कम्स वी फील अनकंफर्टेबल। सो टू अवॉइड दैट सिचुएशन, आपकी शीट्स जो भी होंगी उनमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस अलग से दिए गए हैं, they are without options, so make a habit of doing them without options. और वो जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है by typing something, bring that confidence from the mocks only, कि ओके एक डबल चेक करने की जो आदत रहती है कि whether I find it correctly or not, उस चीज को अवॉइड करके make a habit of putting the answer confidently, कि whatever the steps I followed, whatever the answer I find out was absolutely correct, I am feeling it. However, अभी तो थोड़ा शॉर्ट आंसर आसान आ रहा है, बट स्टिल यू नेवर नो, या तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अलग से करें और जरूर करें, विदाउट ऑप्शंस करें, वेयर यू वुड बी लाइक इंक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस ऑफ मार्किंग द आंसर विदाउट हैविंग द ऑप्शंस। allocate extra time to your weak areas, allocate extra time to your weak areas। उल्टा करते हैं हम इसका, हम चीजों से भागते हैं, हम इनिशियल जो चीजें हमें कंफर्टेबल नहीं है इन द बिगनिंग, वी ट्राई टू लाइक नहीं करना सर, नहीं करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि अगर उस टॉपिक का कोई बहुत आसान क्वेश्चन आ गया और आपने वो टॉपिक किया नहीं था, तो वो जो 4 मार्क्स हैं, यू विल रियलाइज कि यार 2 दिन भी अगर पढ़ लिया होता, सिर्फ नोट्स ही पलट लिए होते, सिर्फ एक बार सेशन देख लिया होता, it would have been able to make that, I would have been able to make this question, because कुछ बहुत आसान प्रॉब्लम आएंगे, और अगर वो आसान प्रॉब्लम आपके छोड़े हुए टॉपिक से आ जाता है, from the topic what you have completely left, it is going to be a drawback, है ना। This you cannot afford, so basically अगर आपका कोई बहुत ही वीक एरियाज है, फॉर एग्जांपल कुछ लोगों का अलजेब्रा होता है, कुछ लोगों का ज्योमेट्री होती है, कुछ लोगों की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, और कुछ लोगों की मे बी बाइनोमियल थ्योरम, व्हाटएवर, तो ये जो भी काइंड ऑफ टॉपिक्स हैं जो बच्चों के बीच में डिस्कशंस में रहते हैं कि आई एम नॉट डूइंग दिस, आई एम नॉट डूइंग इट, इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, प्लीज डू इट, एटलीस्ट डू द क्लासेस, एटलीस्ट डू 50 ऑड प्रॉब्लम्स, डू फ्यू क्वेश्चंस आउट ऑफ इट, सो दैट कि उसके जो बेसिक क्वेश्चंस आएंगे वो आप एग्जामिनेशन हॉल में बना दो, इफ द बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम देयर कम्स। डिफिकल्ट आता है, आप नहीं बना पाते हो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट अगर कोई बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम्स आप नहीं बना पाओगे, इट इज अ प्रॉब्लम। सो माइंड माय वर्ड्स, थोड़ा सा अपनी वीक एरियाज अगर आपकी कुछ हैं तो उन पर काम कर लो। वी हैव लॉट ऑफ मंथ्स लेफ्ट, एंटायर ईयर लेफ्ट। इफ यू हैव रिकॉग्नाइज्ड इट, अगर अभी रिकॉग्नाइज नहीं हुई है, यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज इट बाय डिसंबर, then also there are sufficient time to work upon those areas. So these are the key 10 points what I've shared, जिनको आप याद रख सकते हो for your preparation for upcoming IPMAT 2027, 2028. Let me go through them once more. Master the basics first, develop daily reading habits, set time limit while practicing as well. हम time limit सिर्फ mocks में करते हैं,
हमें प्रैक्टिस करते हुए भी टाइम लिमिट का ध्यान रहना चाहिए कि 30 क्वेश्चंस ऑफ टाइम एंड वर्क, हैव आई स्पेंड द एंटायर 30 आवर्स ओवर इट और आई हैव डन इट इन 2 आवर्स. Next, take regular mocks, maybe class test, topic test in the beginning, then full length test in the last. Consistent practice across topic. किसी भी topic के minimum requirement of number of questions आपको सब topic के करके रखने हैं. किसी में ज्यादा इंटरेस्ट आ जाए उसके ज्यादा कर लेना, but एक minimum requirement of 50-100 questions have to be done across all topics. और number of questions is not important. Understanding of that topic is important. जितने में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की आ जाए. डोंट ट्राई टू सेव टाइम इन द पोस्ट मॉक एनालिसिस, स्पेंड इट, इट इज वर्थ स्पेंडिंग. जितना समय आप पोस्ट मॉक एनालिसिस में लगाओगे इट इज वर्थ स्पेंडिंग. यहां पर टाइम बचाने की कोशिश मत करना. पीवाईक्यूज अर्ली कर लो सो दैट यू विल गेट टू नो द वेटेज ऑफ द टॉपिक्स. किस एग्जामिनेशन में किन से टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है. जिन जिन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा निकलेगा वो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे खत्म करने हैं, फिर सेकंड प्रायोरिटी पर बाकी टॉपिक्स और पैरेलली हमें बिल्ड करते रहने. मास्टर द आर्ट ऑफ पिकिंग और लीविंग क्वेश्चंस. कैसे बिल्ड होगी? विद द हेल्प ऑफ मॉक्स. जितने ज्यादा मॉक्स लिखोगे अपनी स्ट्रेटजीज बिल्ड करोगे और क्वेश्चन के साथ फेमिलियरिटी डेवलप होगी विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस. देन यू विल अंडरस्टैंड दिस आर्ट कि यार कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ डूइंग इट. प्रैक्टिस शॉर्ट आंसर डिफरेंटली विदाउट ऑप्शंस होते हैं. पहले से अलग से प्रैक्टिस कर लेना so that you will be like aware about कि यार कैसे करने होते हैं विदाउट ऑप्शन, कैसे आंसर कॉन्फिडेंटली मार्क करना होता है. वीक एरियाज को वीक मत रहने दो. अभी से टाइम देके whatever you feel अगर रिकॉग्नाइज हो गए हैं, अगर नहीं हुए हैं तो in the time to come it will get recognized. उनको अभी से टाइम देना स्टार्ट करो and start practicing over them. Thank you very much. I hope you have enjoyed this session. Please do let me know in the comments any concerns, any queries from your side. I would be happy to answer it in the comment box. All the very best. See you in the upcoming sessions. Take care.